So welcome you all in Unstoppable Passioneer Meet. So what is Unstoppable? Unstoppable Passioneer is a community of passioneers. This platform is for creating a network, learning, knowledge sharing, exploring new business idea, and help each other. So our mission is to create a big community that lives together. Right. So uh, two people had asked me, is this a networking platform or advertisement company? No, this is not any networking platform or any advertisement company. We want to create a system, ecosystem where not entrepreneurs, all passionpreneurs will get benefit from our this platform. तो बेसिक आइडिया है कि हमारा मतलब एंटरप्रेन्योर को पैशनप्रेन्योर्स को हमारे इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. सो फॉर दिस वी हैव डिसाइडेड to meet every Tuesday and Thursday at 8 p.m. During that time, we will interact with each other, understand each other, and explore means discuss how to make this community a bigger. And also, if somebody want to share their knowledge and experiences and success story over here, that also they can share over here. So for this, we have right now we have allotted 2 days for this Tuesday and Thursday. So that is basic idea to create a platform. So let's have small introduction with everyone. So we at least understand. हाँ, मैं डॉक्टर अभिजीत सायंबर एमडी डॉक्टर हूँ, फिजिशियन और फिजिशियन हूँ मैं. मुंबई में केएम हॉस्पिटल में मैंने एमडी किया है और स्वाइन फ्लू के पेशेंट भी देखे थे. अभी कोरोना में भी अभी थोड़ा सा सोशल वर्क कर रहा हूँ. ग्रेट सर. अभी मेरा नाम आदित्य है और मैं हैदराबाद से हूँ. I am into distribution business of tiles, sanitary ware, faucets. I also have a residential furniture and decor showroom, and I'm also into distribution of crockery. Yeah, please. Okay, so basically I'm an interior designer and I'm having 10 years experience. Yeah, I am Shilpa Keskar from Pune. I am work as a structural designer engineer, and now I am planning to take AutoCAD and SCAD Pro ETABS online classes. Myself Nikita Hirorkar. Okay, you are Nitika. Hello. Yeah. Please, sir, please go ahead. Hello. Yeah, go on. बताइए. Myself Nikita Hirorkar. I and my husband, Mr. Amit Hirorkar, works for Vidarbha Jungle Safari Tours and Travels. Okay. And again, we have another business of share trading, from Aditya Birla Group. Good evening. Myself Mahesh Mankar. I am from Pimpri Chinchwad area, Pune. I am practicing as a Astro Vastu consultancy, building biology, and all home health audit. कि एग्जैक्टली ग्रुप का पर्पस सबको समझ आया या नहीं समझ आया, तो वो थोड़ा सा. तो सर आपका कोई चलेगा. हाँ, तो सर आप किसी का सुजेशन हो जिसको आइडिया नहीं आ रहा ग्रुप के बारे में, वो हमारे से ओपन डिस्कस कर सकता है. किसी के कोई भी सुजेशन हो इस ग्रुप को लेकर, तो वो भी हमारे से ओपनली डिस्कस कर सकता है. अभी बेसिक आइडिया है कि अब हम लोग ये समझे कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किस लिए किया गया है. मेन पर्पस हमारा भी एट प्रेजेंट आज का हमारा ये पर्पस है कि हम मैक्सिमम लोग समझ पाए कि ये प्लेटफॉर्म किया किस लिए क्रिएट किया है. बेसिकली हमारा आइडिया है कि एंटरप्रेन्योर को स्ट्रेंथन कैसे करें. Okay. इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं. एक हाँ, नेटवर्किंग हो गया, कनेक्शन से मैंने बोला. आप किसी फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं, तो आप वैल्यू दे सकते हैं इसमें आकर. आपकी वैल्यू से आप एंगेज कर रहे हो पीपल्स को, डिफरेंट पीपल को, जो आपसे लर्न कर रहा है तो वो लर्न भी कर रहा है. हमें शेयर क्या करना Okay. है, हमें शेयर क्या करना है. जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो तो सबके पास है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो एड ऑन चीजें हैं जैसे स्किल्स है, मार्केटिंग की स्किल्स हो गई, सेल्स कैसे करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, नया बिजनेस सेटअप कैसे करना है, ये जो चीजें है ये हमें स्प्रेड करनी है, शेयर करनी है. तो इन चीजों से दूसरा कोई सीखे एंड उसके हिसाब से मतलब अपनी खुद की ग्रो करे. तो दिस इज द basic idea and basic purpose of this group and this platform, and we want to grow bigger and bigger. Query है. हाँ जी.
मतलब अभी आपने जो बोला वो तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया है कि इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड गेटिंग क्वेरीज आल्सो डन, वाइस वर्सा। प्रदीप दिस साइड। यस प्रदीप। आपने बोला कि सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, तो जरूरी नहीं सक्सेस स्टोरी, हम फेलियर भी अपना शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हाँ, क्योंकि हमें फेलियर से ज्यादा सीखने को मिलता है। सक्सेस तो इट्स ऑनगोइंग जर्नी। हाँ हाँ। तो ये जो कोविड का जो सिचुएशन है उसमें ये चीज समझ में आ गया कि वी ऑल नीड सपोर्ट ऑल लेवल्स, राइट। तो अगर हमारी जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको अगर आगे ऑगमेंट करना है, आगे बड़े स्केल पे लेना है या नेशनल लेवल पे ले जाना है, तो हमारी जो स्किल सेट में जो गैप्स है ना, उस गैप्स की कमियां को पूरी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इसमें हमको सबकी सपोर्ट लगेगी, बिकॉज अगर 10-12 लोग ही ग्रुप में कुछ कोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही सब जानते हैं। हर एक के पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट सिस्टम है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, एंड फेलियर डेफिनेटली फेलियर्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं फेलियर्स आपको सक्सेस का रियल वैल्यू समझाती है। तो ग्रुप में हम लोग का जो पर्पस है, जो दीपक या रितेश जी का पर्पस है, वो वेरी क्लियर है कि हम ऐसा ग्रुप बनाएं जो अपने काम को लेकर बड़ा पैशनेट हो। चाहे वो अगर एनजीओ भी चला रहा है तो वो ऐसे चला रहा है कि उसको दिन भर वो वही दिख रहा है। Good. I think Amitabh had given a great plug. So can I speak now for maybe 5 minutes? Yeah. Am I audible to all of you? Yeah. I'm not sharing any screen, but entrepreneur का mindset के हिसाब से अभी देखिए COVID-19 has actually hit us very badly. Most of our business are actually into a different phase now. But our approach to this kind of a situation, I'm not getting into what is going to be a bad or good I'm talking about, but our approach to this kind of situation has got four clauses. You know, if you want, you can note it down. One is we talk about failure mindset. बहुत सारे लोग ये सोच के हम ये कर रहे हैं कि क्या होगा आगे. One is called as conventional success mindset. Conventional success. First one is failure. Second one is frustration mindset. Third one is कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट. कुछ एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच अभी भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत सक्सेस किया. आई वाज टॉकिंग टू अमिताभ इन द आफ्टरनून आल्सो सेम थिंग कि सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी टेस्टेड सम सक्सेस इंक्लूडिंग नीड टू मूव इनटू अ ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट. अभी जो भी अगर आपको यहाँ से बिजनेस बड़े लेवल पे लेके जाना है या अच्छे लेवल पे लेके जाना है, यू नीड टू मूव टू अ ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट. So we should not be either a failure or a frustration mindset. We should not be even having a conventional success mindset. We should be actually adopting a mindset which is called as transformative. Rather than transactional, it is called as transformative. Always we need to accept what has happened and try to put new strategies in place. So transformative mindset will actually double your business at this point of time. You have to move from a physical to a digital mode. There is a beautiful saying which says that if you want to get results you have never got, if you want to get the results which you have never got, you have to start doing those things which you have never done. एवरीवन, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे अबाउट मी. मेरा नाम रवि है. आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात. मैं सूरत गुजरात से हूँ. मेरे को कहना चाहूँ तो मैं 2012 से मैं 12वीं कक्षा में था, तब से मैं बिजनेस माइंड में आ चुका हूँ. कि जब मैं एक अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं 12वीं कक्षा में था तब हमारे प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों में से जॉब किसको किसको करनी है. तो हमारे क्लास में से 98% बंदे ने लड़के ने हाथ खड़े किए थे कि हमको जॉब करनी है. तो और मैं 98 में से नहीं था. मैं और मेरा फ्रेंड था प्रशांत, वो हम दोनों ऐसा सोच रहे कि सब लोग जॉब देंगे, जॉब करेंगे तो जॉब देगा कौन. तो मैं और प्रशांत मेरा फ्रेंड, तब से हमारे एक ही माइंड से हम बिजनेसमैन बने. ठीक है सर. और ये हमारा जी पीकेसी का हमारा क्लब बनाया है, प्रोफेशनल कैंगन क्लब, जिसमें हम एनर्जी कंपनी की वाटर आयनाइजर मशीन सेल करते हैं. मैं कंपनीज की बात करूँ तो जो हमारी कंपनी वो जापानीज बेस्ड कंपनी है. टोटली जो प्रोडक्ट है वो मेड इन जापान प्रोडक्ट है हमारी. जो कंपनी 1974 में स्टार्ट हुई थी और जो भी मशीनरीज बनते थे वो 1974 से लेकर 1994 तक सिर्फ हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाता था. ये एक पूरा एक मेडिकल डिवाइस है. जापान में जब परमाणु अटैक हुआ, न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसके बाद वहाँ की बॉडी में जो डिसीज आ गए तो उसको रिमूव करने के लिए साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए कि सबसे ज्यादा बेस्ट वे क्या है. तो उसने देखा
कि हमारी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट 72% पानी से बनी है। मीन्स हमारी बॉडी में देखें तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कोई भी भाग ले लो, ऑलमोस्ट पानी तो रहता ही है। तो हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फूड पे ध्यान देते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे, क्या कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, तो वो सब उस पे हम हमेशा फोकस करते हैं। वो ऑलमोस्ट 15 से 20 क्लस्टर का होता है, जिससे क्या होता है कभी कभी हम पानी पीते तो अपना पेट हेवी लगता है, तो हमारी मशीन उसको 5 to 6 क्लस्टर में एकदम पतला पानी बना देता है। जैसे कि हमको ग्रीन टी बनानी है तो हम उसको पानी को गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है पानी जैसे गर्म होता है वो पतला होता है, और जैसे ठंडे करोगे फ्रिज में रखोगे तो वो मोटा हो जाता है। तो अगर ग्रीन टी बनानी है तो 100% हमको पानी गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है पानी पतला होगा तो चाय की पत्ती के साथ ऑब्जर्व होकर उसका जो प्रॉपर्टीज होगा पानी में आ जाएगा। जब हमारा पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, ओनली नॉर्मल वाटर में भी बन सकता है, क्योंकि हमारा जो पानी एकदम स्लिम है तो बॉडी को 100% बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगी। जैसे कि हमारे डॉक्टर विक्टर रॉयस है, उसने पूरे एक रिसर्च किया था बॉडी के बारे में कि हमारी जो बॉडी होती है वो 15% ही नॉर्मल पानी ऑब्जर्व कर पाते हैं, बाकी का हमारा जो पानी वो 85 to 95 तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद की प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। हमारे बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है, जैसे कि हम एप्पल है, हम उसको काट के टेबल पे रख देंगे तो आधे घंटे में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट उसको ऑक्सीडाइज से बचाना हो तो हम उसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे क्या होता है वो ऑक्सीडाइज कम होगा। तो हमारी बॉडी भी ओपन एनवायरनमेंट में आ रही है। हमने एप्पल के लिए तो एक फ्रिज बना दिया जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज ना हो, पर ह्यूमन बॉडी वाले के ह्यूमन बॉडी के लिए कोई फ्रिज नहीं बना। उसके लिए क्या करना होता है कि हम ऐसे फूड या ड्रिंक्स खाते हैं जिससे हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज होती है या डीऑक्सीडाइज होती है। तो एक उसका साइंटिस्ट ने पूरा टेस्ट बनाया था जिसमें ORP टेस्ट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका प्लस ORP होता है वो बॉडी को ऑक्सीडाइज ज्यादा करता है। अगर आप इस तरह के ज्यादा फूड खाते हो, जैसे ड्रिंक्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, RO या बॉटल वाटर हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, मीन्स आपकी बॉडी को ज्यादा हार्मफुल रहेगा। और जानकर वो ऑलमोस्ट एसिडिक होता है। ज्यादातर जो बीमार होते हैं उसका कंजम्पशन कोल्ड ड्रिंक ज्यादा होता है, तो जिससे उसका बॉडी एसिडिक होता है, जिससे उसको बीमारियां आता है। और हमारा जो पानी है वो अल्कलाइन होता है, जिससे हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि अब कैंसर की बात करें, जैसे मलेरिया हुआ तो हम पता है कि मच्छर काटता है तो उसका मलेरिया, उसकी वजह से मलेरिया हुआ, बट व्हाट अबाउट द कैंसर? कैंसर क्यों हो रहा है? तो कैंसर होने का जो रीजन था वो ओटो हेनरिच ने 1923 में इन्वेंट किया था। उसको 1931 में नोबेल प्राइज भी दिया हुआ था कि कैंसरिक टिश्यू और एसिडिक, हेल्थी टिश्यू और अल्कलाइन। जैसे कि कोई भी सब्जी ले लो, फ्रूट, हर केमिकल्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड आ रहा है, उसको आप फ्री खा सकते हो। मैं लास्ट में इतना ही कहता हूँ, चॉइस इज योर, आप चॉइस करो। हम हमारा सिर्फ एक ही टैग लाइन है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। हमारी बॉडी 3 चीजों पे, हवा, पानी, खुराक। हवा जो हमको पोल्यूटेड करती है उसके सामने हमने ये पानी हमको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। जो पानी है वो ऑलमोस्ट एसिडिक हो चुका है, उसको अल्कलाइन करता है। और थर्ड जो खुराक है, मीन्स फूड है, जो फुल ऑफ पेस्टिसाइड आ रहा है, उसको भी हम उसमें फूड को केमिकल फ्री कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया अबाउट माय प्रोडक्ट। अब किसी को भी कुछ क्वेरी हो अबाउट पानी के रिलेटेड, कुछ पूछना हो, TDS के बारे में कुछ पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। Say thanks to everybody, and we have joined together, and let's keep this tempo all the weeks throughout the time. So हम मिलते रहे, हम एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे को बेटर समझे, तो यही हमारे लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे, एटलीस्ट हम फ्रेंडली रह सकते हैं एक साथ। ओके, डेफिनेटली। दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन। Thank you all.